Conservation of momentum. In an isolated system, the total momentum remains constant or conserved. कोई भी isolated system है, isolated system मतलब हो गया जिहदे विच की है गैसेस ਦਾ temperature, pressure एक्सेट्रा ਦਾ कोई change नहीं ਹੁੰਦਾ हैगा, constant रहंदी है isolated, अंदर बाहर ਉਹਦੇ कोई चीज़ exchange नहीं ਹੁੰਦੀ हैगी गैसेस वगैरह, ठीक है, वो isolated system हो गया। मतलब isolated system कोई भी ਆਪਾਂ अगर ਆਪਾਂ box ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, कोई isolated box है, अगर आप कहते आइसोलेटेड है मतलब कि ਉਹਦੇ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗਸ ਇਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਕੀ ਆ, ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਜਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਈਸੋਲੇਟਡ ਸਿਸਟਮ। So in an isolated system, the total momentum remains constant or conserved. For if net F is equals to 0, that is net force is equals to 0, and if net force is equals to delta P by delta T. This is according to Newton's second law, that is F net is equals to delta P by delta T, rate of change of momentum. अगर असी F net equals to 0 आ इक्वेशन दे विच पुट कर देते हैं, अपने को बन जाएगा delta T by delta T equals to 0. फ्रॉम हेयर इतों अगर आप एफ नैट ने 0 पुट कर देने तो इतने आ जाएगा डेल्टा पी बाई डेल्टा टी इक्वल्स टू 0। सो फ्रॉम हेयर डेल्टा पी इज इक्वल्स टू 0। डेल्टा पी इज इक्वल्स टू 0 मीन्स चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल्स टू 0। डेल्टा मीन्स चेंज, डेल्टा पी मीन्स चेंज इन मोमेंटम, दिस इज इक्वल्स टू 0। अगर कोई चीज़ चेंज नहीं हो रही तो मतलब वो चीज़ क्या कॉन्सटेंट रही है। कंजरवेशन ऑफ मोमेंटम ਦੀਆਂ कुछ एप्लीकेशनस ने ਤੁਹਾਡੀ बुक ਵਿੱਚ गिवन ने, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਿਆ ਸ਼ਾਰਟ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰਸ ਪੁੱਛ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਗਨ ਐਂਡ ਬੁਲਟ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨੇ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਸਾਰੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਆਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮੋਮੈਂਟਮ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਆਫ ਨਿਊਟਨਸ ਫਸਟ ਲਾਅ, ਸੈਕਿੰਡ ਐਂਡ ਥਰਡ ਲਾਅ, वो सारी एप्लीकेशंस। नेक्स्ट टॉपिक इज कोलिजन ऑफ बॉडीज। दिस टॉपिक इज ऑल्सो नोन एज कंजरवेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ओके, सो जो मर्जी आसवे तुसीं यही वाला टॉपिक करना है। What is this? This is system of two bodies. Let the two bodies 1 and 2 have momentum P1 and P2 before they collided with each other. दो bodies C 1 and 2, ठीक है, they have momentum P1 and P2। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੋਲਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ मतलब कि एक दूसरे ਦੇ ਵੱਲ ਟਕਰਾਈਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬੋਡੀ ਦਾ ਮੋਮੈਂਟਮ ਸੀ P1 और ਇਹ ਬੋਡੀ ਦਾ ਮੋਮੈਂਟਮ ਸੀ P2, ठीक है। फिर उस तो बाद ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੋਲਾਈਡ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆਫਟਰ ਕੋਲੀਜਨ देयर मोमेंटम्स आर P1 डैश एंड P2 डैश। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੀਜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਮੈਂਟਮ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਸਟ ਬੋਡੀ ਦਾ P1 डैश एंड सेकेंड बॉडी का P2 डैश। फाइन, so these are their initial and final momentums। now by Newton's second law, F is equals to dp by dt। ये आप पढ़े न्यूटन सैकेंड लॉ के अकॉर्डिंग F इज इक्वल्स टू होंदा है dp by dt। हुण फस्ट बॉडी दे लई फॉर वन दैट इज F12, फस्ट बॉडी ने जिहड़ी सैकेंड बॉडी ते फोर्स अप्लाई कीती, ਉਹ किन्नी होएगी, F इज इक्वल्स टू की हुंदा dp by dt, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब कि किन्ने टाइम्स कितना मोमेंटम चेंज होया, दैट इज इक्वल्स टू P1 डैश माइनस P1 ओवर डेल्टा टी, मतलब कि डेल्टा टी टाइम है, डेल्टा टी टाइम दे विच मोमेंटम कितना चेंज होया P1 डैश माइनस P1 की सी जिहड़ा बिफोर कोलिजन मोमेंटम सी स्टार्टिंग मोमेंटम, P1 डैश की है आफ्टर कोलिजन मोमेंटम, दोनों जिहड़ा डिफरेंस हो गया चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम। सिमिलरली फॉर बॉडी 2 force will be F21, that is equals to P2 dash minus P2 over delta t, मतलब delta t टाइम दे विच कितना मोमेंटम चेंज होया P2 dash minus P2। now by Newton's third law, what is Newton's third law? F12 equals to minus F21, मतलब कि टू इक्वल एंड ओपोजिट फोर्सेस होंगे, इक्वल ने इसलिए दोनों फोर्सेस दे विच इक्वल टू द साइन, ओपोजिट है इसलिए नेगेटिव साइन लगेगा। So F12 equals to minus F21। now what is F12? F12 is equals to this, that is P1 dash minus P1 over delta t, and F21 this is equals to P2 dash minus P2 over delta t। ये दोनों वैल्यूज़ नूं की आपां ये वाली इक्वेशन च पुट कर देना है, ये वैल्यूज़ ये पुट कर देनियां ने। F12 की वैल्यू जी ये वाली सी इनू इत्थे पुट किया, एंड F21 की जी वैल्यू सी ये वाली इनू इत्थे पुट करता, डेल्टा टी नाल डेल्टा टी कैंसल। नाउ P1 डैश माइनस P1 इक्वल्स टू P2 डैश माइनस P2,
इन्हों अरेंज कर लेना है, मतलब -P1 है ये राइट साइड जाके +P1 हो जाएगा एंड -P2 लैफ्ट साइड जाके +P2 हो जाएगा। ठीक है, तो जो आप इन्हों अरेंज कर लिया अपने को बन जाएगा P1 डैश प्लस P2 डैश इक्वल्स टू P1 प्लस P2। ठीक है, P1 डैश प्लस P2 डैश की सी फाइनल मोमेंटम एंड P1 प्लस P2 की सी इनीशियल मोमेंटम। सो दिस इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, मतलब कि इनीशियल तो फाइनल मोमेंटम की है कंजर्व रहते हैं, इक्वल रहते हैं। सो दिस इज़ द इंपॉर्टेंट टॉपिक। Next problem is a railway truck A of mass 3 × 10⁴ kg travelling at 0.6 meter per second collides with another truck B of half its mass moving in opposite direction with a velocity of 0 per second. If the trucks couple automatically on collision, find the common velocity with which they move. First is railway truck A है, उदा mass given है, उन्होंने आप assume कर लिया m1 equals to 3 × 10⁴ kg। नैक्सट दूसरा ट्रक है बी ट्रक, वह की है ए ट्रक का की है मास हाफ है, मतलब जिन्ना एदा मास से है ट्रक ए का वह हाफ अपने को आ जाएगा ट्रक बी का मास आ जाएगा। मीनस 3 × 10⁴ kg का हाफ किया, दैट इज़ 1.5 × 10⁴ kg मास m2। नैक्सट इज़ हम ट्रक ए की है, वो वेलोसिटी हैगी है 0.6 मीटर पर सेकेंड एंड ट्रक बी की वेलोसिटी अपने को कितनी है 0.4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हुण ये सी बट इन्होंने की किया ट्रक की ओपोजिट डायरेक्शन मूव कर रहा है, सो दी वेलोसिटी की हो जाएगी -0.4 मीटर पर सेकेंड। नैक्सट बिफोर कोलिजन तो पहला अपने को दो अलग अलग वेलोसिटीज़ मूव कर रहे थे। बिफोर कोलिजन अपने को हो गया m1u1 प्लस m2u2, ये फॉर्मूला है, इस वैल्यूज सारियां पुट करके अपने को आ जाएगा 1.2 × 10⁴ किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। आफ्टर कोलिजन वो कहते जो दोनों कपल हो जाते हैं, मतलब कोलाइड कर जाते हैं, उस तो बाद की इकट्ठे हो जाते कंबाइन हो जाते हैं, तो उन्होंने मासिस प्लस हो जूगे, तो दोनों कंबाइन हो गए तो दोनों के मास प्लस होकर की दोनों सेम वेलोसिटी मूव करन लग जाएंगे। सो आफ्टर कोलिजन m1 प्लस m2 × v, m1 प्लस m2 × v वैल्यूज़ पुट करके अपने को आ जाएगा m1 प्लस m2 दी वैल्यूज़ जो आप पुट की अपने को लगे 4.5 × 10⁴ v आपको नहीं पता फाइनल, सो v की वैल्यू v नू आप की एज इट इज़ लिखा है इतने। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इनीशियल मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। इनीशियल जो आप फाइंड किया बिफोर कोलिजन एंड फाइनल इज़ दिस, दैट इज़ 4.5 वाला। इतों तो आप v की वैल्यू फाइंड कर लेनी है, v इज इक्वल्स टू कितनी आ जाएगी 0.27 मीटर पर सेकेंड। सो ये उन्होंने कॉमन वेलोसिटी है। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, तुसीं 9th क्लास पढ़े हैं। व्हाट इज़ न्यूटन्स थर्ड लॉ? फॉर एवरी एक्शन देयर इज़ इक्वल एंड ओपोजिट रिएक्शन एंड बोथ एक्ट्स ऑन इन टू डिफरेंट बॉडीज़। ठीक है, कहते कि होंगे कोई भी एक्शन के लिए की है इक्वल एंड ओपोजिट रिएक्शन होंगे, मतलब कि अगर तुम कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हो वो जी चीज़ से फोर्स अप्लाई कर रहे हो वो भी इक्वल एंड ओपोजिट फोर्स अप्लाई करती है, दोनों की है डिफरेंट बॉडी से एक्ट कर रहे हो। देखो एग्जाम्पल जिमें फर्स्ट बॉडी है ये सैकेंड बॉडी से फोर्स अप्लाई कर रही है F12, सिमिलरली सैकेंड बॉडी की है फर्स्ट बॉडी से फोर्स अप्लाई कर रही है F21, जस्ट की फोर्सेज इक्वल अप्लाई हो रही हैं, जस्ट की ओपोजिट डायरेक्शन ने। सो मैथमेटिकली अपने को किया जाएगा F12 इक्वल्स टू -F21, मतलब जिन्ना फर्स्ट बॉडी सैकेंड से फोर्स अप्लाई कर रही है तो उन्नी ही फोर्स की सैकेंड बॉडी फर्स्ट से अप्लाई कर रही है, बस्ट की डायरेक्शन ओपोजिट है इसलिए कि नेगेटिव साइन आ जाएगा। सो दिस इज़ द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ। एग्जाम्पल्स ये स्विमिंग बिकम्स पॉसिबल बिकॉज ऑफ द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। स्विमिंग पॉसिबल थर्ड लॉ की वजह नाल ही होंदी है, मतलब कि जो कोई स्विम करता है तो कि पानी नू कटदा है, मतलब कि अपने आर्म्स नाल पानी नू कट करके अगे जाता है, तो पानी भी किया तो ओपोजिट फोर्स अप्लाई करता है। ठीक है, सिमिलरली जंपिंग ऑफ अ मैन फ्रॉम अ बोट ऑन टू द बैंक ऑफ रिवर, जो कोई मैन की है बोट तो किया रिवर के किनारे ते किया जंप करता है, तो उस टाइम भी किया जी बोट आ वो ओपोजिट फोर्स अप्लाई करती। सिमिलरली थर्ड जर्क इज़ प्रोड्यूस्ड इन अ गन वैन बुलेट इज़ फायर्ड फ्रॉम इट, जो गन तो कोई बुलेट फायर होंदा है बुलेट अगे वाल नूं जांदा है, पर कहते गन की डायरेक्शन की वो पिछे वाल नूं झटका मारती, क्योंकि इक्वल एंड ओपोजिट फोर्सिस हो गई, वो जर्क करता है। सिमिलरली पुलिंग ऑफ अ कार्ट बाय अ हॉर्स, जो कोई हॉर्स की कोई कार्ट नूं पुल कर रहा है तो वो कार्ट भी की है कहते पिछे वाल नूं जांदा है। ठीक है, सेम इक्वल फोर्सिस होंगे ने, इसलिए हॉर्स नूं किया वो कार्ट नूं पुल करन दे विच क्या फोर्स लगानी पैंदी। नाउ नैक्सट नोट
Newton's second law of motion is called the real law of motion because first and third laws of motion can be obtained by it. ਇਹ ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਵੀ ਦੱਸੋ ਹਾਊ ਇਜ਼ ਨਿਊਟਨਸ ਲਾਅ ਆਫ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਅ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦ ਰੀਅਲ ਲਾਅ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਐਂਡ ਹਾਊ ਫਸਟ ਐਂਡ ਥਰਡ ਲਾਜ਼ ਆਰ obtained from it, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਰਨੀ ਹੈ। Next is modern version of these laws. इन्हें हम laws का modern version देता है. A body continues in its initial state of rest or of motion with uniform velocity unless acted by an unbalanced external force. ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਜਸਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਫਸਟ ਲਾਅ ਦੀ ਮਾਡਰਨ ਵਰਜ਼ਨ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਬੋਲਦੇ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਵੈਲੋਸਿਟੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਬਾਡੀ ਰਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੈਸਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਕੀ ਆ ਕੋਈ ਅਨਬੈਲੈਂਸਡ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸ ਕੀ ਹੈ ਉਹ 'ਤੇ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। अनबैलेंस इसलिए देखिए अगर अनबैलेंस होगी तो ही बॉडी मूव करूगी या फिर उसकी स्टेट चेंज होगी। सिमिलरली सेकेंड फोर्स ऑलवेज अकर इन पेयर्स। इफ अ बॉडी ए exerts a force on body B and equal and but opposite force is exerted by body B on body A। मतलब है कि जस्ट न्यूटन्स थर्ड लॉ ਨੂੰ एक्सप्लेन ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆ, ਇਹ फस्ट लॉ ਨੂੰ एक्सप्लेन ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ठीक है। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਹਾਂ ਨੋਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਟਨ ਸੈਕਿੰਡ ਲॉ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਰੀਅਲ ਲॉ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ डिराइव करना है भी क्यों कहते हैं सैकेंड लॉ ਨੂੰ ही क्यों कहते रियल लॉ, क्योंकि क्या फस्ट ते थर्ड लॉज की वो सैकेंड लॉ तो obtain होंगे। सो दिस इज क्वेश्चन, प्रूव दैट सैकेंड लॉ इज रियल लॉ। आंसर इज न्यूटन्स फस्ट लॉ एंड थर्ड लॉ आर कंटेन्ड इन द सैकेंड लॉ। फस्ट लॉ ते थर्ड लॉ की है न्यूटन के सैकेंड लॉ च कंटेन होंगे है। एग्जाम प्रूफ देखो की है, फस्टली अगर आप सैकेंड लॉ की स्टार्ट करते हैं, सैकेंड लॉ तो आप की है फस्ट लॉ प्रूव करते हैं, ठीक है। पहला सैकेंड लॉ तो असी फस्ट लॉ प्रूव करते हैं, फिर असी सैकेंड लॉ तो थर्ड लॉ प्रूव करांगे, फाइन। सो देखो नाउ फ्रॉम सैकेंड लॉ की इक्वेशन की सी एफ इज इक्वल्स टू एम ए, ठीक है। नाउ एफ इज इक्वल्स टू एम ए दी सैकेंड लॉ की इक्वेशन सी। हुण अगर आप कह दें कि एक्सटर्नल फोर्स बॉडी से की एक्ट नहीं कर रही, एफ एक्सटर्नल इक्वल्स टू की है 0, ठीक है। एफ एक्सटर्नल 0 मतलब हुण फोर्स का फॉर्मूला की है एम ए, इसका मतलब एम ए इज इक्वल्स टू की हो जाएगा 0। सो एम ए इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू 0, मतलब कि फोर्स की ये वाली वैल्यू एम ए नू की है इतने पुट करता, एम ए इक्वल्स टू 0 आ गया। बट हम बॉडी का मास 0 पॉसीबल नहीं है, ठीक है। बॉडी का कोई मास होएगा, सो मास तो अपने को इतने 0 नहीं होएगा, ठीक है। क्योंकि मास इतने 0 नहीं होएगा तो मतलब की रह गया एक्सेलरेशन रहेगी। सो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल्स टू 0। सो आ गया अपने को एक्सेलरेशन 0। हुण एक्सेलरेशन 0 कदों होंदी है, जदों अपने को बॉडी की है एट रेस्ट ते है, ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ बॉडी रेस्ट है या फिर की ਉਹਦੀ वेलोसिटी कॉन्सटेंट है, ठीक है। जो बॉडी की कॉन्सटेंट वेलोसिटी है तो अपने को एक्सेलरेशन 0 है, या फिर जो बॉडी रेस्ट है तो एक्सेलरेशन 0, फाइन। इसका मतलब कि एक्सेलरेशन 0 का मतलब की हो गया ਜਾਂ ਤਾਂ v की है कॉन्सटेंट है, मतलब वेलोसिटी कॉन्सटेंट है, चेंज नहीं हो रही। सो ਇਹਦਾ मतलब कि है जो एक्सटर्नल फोर्स अपने को 0 सी, ਇਹਦਾ मतलब अपने को इत्थों रिजल्ट आ गया कि v इज इक्वल्स टू की है कॉन्सटेंट, वेलोसिटी कॉन्सटेंट है। सो इसका रिजल्ट आप लिख देंगे कि वेलोसिटी रिमेन्स कॉन्सटेंट अनटिल और अनलैस एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड विच इज़ फस्ट लॉ। यही फस्ट लॉ की अपने को हो सीगी, आप प्रूव करता सैकेंड लॉ तो कहते जो बॉडी की एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही होते कोई 0 है तो मतलब वो कॉन्सटेंट की है वेलोसिटी रही है। दिस इज़ द फस्ट लॉ। सो हैंस फस्ट लॉ इज़ कंटेन्ड इन सैकेंड लॉ। नैक्सट हम प्रूव करना है कि थर्ड लॉ इज़ कंटेन्ड इन सैकेंड लॉ। थर्ड लॉ के लिए आप करते हैं, इनू अज्यूम करते हैं, कंसिडर 2 ऑब्जेक्ट्स A and B अंडरगो कोलिजन एज शोन इन फिगर, ठीक है। दो बॉडीज़ ने ਜਦੋਂ दो बॉडीज़ A ਤੇ B P1 ਤੇ P2 मोमेंटम है उन्होंने बिफोर कोलिजन जो एक दूसरे नाल टकरा रही ने, तो आफ्टर कोलिजन आप कहते हैं कि टकरा के कि वो दोनों अलग वेलोसिटीज़ नाल मूव करन लग गए, ठीक है। आप कहते हैं A बॉडी की की है अपने को मोमेंटम हो गया P1 डैश वैक्टर, B बॉडी का हो गया P2 डैश वैक्टर आफ्टर कोलिजन। बिफोर कोलिजन मोमेंटम सी P1 वैक्टर एंड P2 वैक्टर, फाइन। सो आफ्टर कोलिजन अपने को की हो जाएगा P1 डैश वैक्टर एंड P2 डैश वैक्टर। नाउ अकॉर्डिंग टू सैकेंड लॉ के अकॉर्डिंग अपने को की होएगा, सैकेंड लॉ की सी अपने को F इज इक्वल्स टू dP बाय dt दैट इज़ डेल्टा P बाय डेल्टा T, फाइन। सो इसका मतलब हम दो फोर्सेस एक्ट करें, एक बॉडी 1 2 ते बॉडी 2 की है फस्ट बॉडी एक्ट करिए। F12 वैक्टर इक्वल्स टू आ जाएगा डेल्टा P1 वैक्टर बाय डेल्टा T एंड F21 वैक्टर इक्वल्स टू आ जाएगा डेल्टा P2 वैक्टर बाय डेल्टा T, ठीक है। दो इक्वेशंस आ गई हैगी, फर्स्ट इक्वेशन हैगी, सैकेंड इक्वेशन। दोनों बॉडीज जो एक दूसरे से फोर्स अप्लाई कर रही हैं।
नैक्सट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजरवेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम नाउ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजरवेशन की हुंदा है बिफोर कोलिजन मोमेंटम इक्वल्स टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन मतलब कि पहला जिन्ना मोमेंटम सी बिफोर कोलिजन इक्वल्स टू होएगा जिन्ना आफ्टर कोलिजन मोमेंटम ठीक है इसका मतलब आ गया P1 वैक्टर प्लस P2 वैक्टर इक्वल्स टू P1 डैश वैक्टर प्लस P2 डैश वैक्टर ठीक है ਜਦੋਂ ਬੋਡੀਜ਼ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਫਟਰ ਕੋਲੀਜਨ ਟਕਰਾਈਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵੱਲ ਆਈਆਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਲੱਗ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾਲ ਮੂਵ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਮੈਂਟਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜਸਟ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਇਕੁਅਲ ਰੱਖਿਆ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਵਾਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਲੈ ਗਏ ਠੀਕ ਹੈ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਲੈ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 0 ਆ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਕਿ P1 ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ P1 ਡੈਸ਼ ਇੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਗਿਆ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਆ P2 डैश ये भी इधर जाके की हो जाएगा लेफ्ट साइड जाके माइनस हो जाएगा इक्वल्स टू क्या आ गया 0 ठीक है नाउ व्हाट इज P1 माइनस P1 डैश दिस इज चेंज इन मोमेंटम सिमिलरली P2 माइनस P2 डैश दिस इज ऑल्सो चेंज इन मोमेंटम एक ये फर्स्ट बॉडी का चेंज मोमेंटम है आ सैकेंड बॉडी का मोमेंटम चेंज है ठीक है 1 मीनस फर्स्ट बॉडी का चेंज इन मोमेंटम सैकेंड 2 मीन सैकेंड बॉडी का चेंज इन मोमेंटम तो असीं चेंज इन मोमेंटम नूं डिनोट किया डेल्टा नाल तो P1 माइनस P1 डैश इक्वल्स टू डेल्टा V1 and P2 minus P2 dash equals to delta P2 ठीक है now dividing both sides of this equation by delta D delta P1 by delta D plus delta P2 by delta D now what is delta P by delta D we have discussed in its second law that is delta P by delta D is equals to force so we have delta P1 by delta T is equals to क्या आएगा जी फर्स्ट बॉडी फोर्स अप्लाई करें दैट इज F12 वेक्टर एंड delta P2 वेक्टर बाय delta T is equals to क्या आएगा फोर्स F21 जो सैकेंड बॉडी फर्स्ट से फोर्स अप्लाई करेगी दिस इज इक्वल्स टू 0 इतों की अपने को रिलेशन आ गया F12 वेक्टर प्लस F21 वेक्टर इक्वल्स टू 0 फाइन नाउ हुण राइट लैफ्ट साइड से की है F21 प्लस द है राइट साइड जाके की हो जाएगा माइनस सो अपने को रिलेशन बन जाएगा F12 वेक्टर इक्वल्स टू माइनस F21 वेक्टर एंड दिस वाज न्यूटन्स थर्ड लॉ असी सैकेंड लॉ तो स्टार्ट किया इक्वेशनस यूज़ की इतों की असी किया थर्ड लॉ डिराइव कर लिया ठीक है सो हैंस किया एक्शन इक्वल्स टू किया गया माइनस रिएक्शन मतलब कि एक्शन तो रिएक्शन किया इक्वल होंगे है ओपोजिट डायरेक्शंस सो दिस इज न्यूटन्स थर्ड लॉ हैंस वी कैन से दैट न्यूटन सेकेंड लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन दिस नेक्स्ट इज इक्विलिब्रियम ऑफ अ पार्टिकल कोई भी पार्टिकल इक्विलिब्रियम कदों होंदा पार्टिकल इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन इट इज 0 जदों कोई भी बॉडी दे की है नैट एक्सटर्नल फोर्स नैट मतलब कि ओवरऑल टोटल फोर्स की है 0 हो जाएगी जिवें आ एग्जाम्पल दी हुई सी इत्थे कोई जिवें हाँ बॉडी पई है इत्थे लैफ्ट साइड तो भी फोर्स लग रही है और इत्थे राइट साइड तो भी फोर्स लग रही है दोनों पासों अगर अपने को इक्वल फोर्स लग रही है तो बॉडी मूव ही नहीं कर पाएगी इक्वल फोर्सेस हो जाएंगे इस केस का कहेंगे बॉडी इज़ इन इक्विलिब्रियम ठीक है मूव ही नहीं करेंगे कि इधरों लैफ्ट तो भी इतने फोर्स लग रही है और इतने राइट तो भी फोर्स लग रही है सिमिलरली नैक्सट अगर हम इतने क्या 3 साइड्स तो फोर्स लग रही है नैक्सट वाले पार्ट में इतने देखो एक बॉडी से कि उपरों इतों फोर्स लग रही सी ठीक है और एक इधरों लैफ्ट साइड तो लग रही सी फोर्स और एक इधरों राइट साइड तो दिस इज शोन हेयर दिस इज शोन इन दिस डायग्राम कोई भी बॉडी से अगर अपने को सेम फोर्सेस लग रही हैं F1 F2 एंड F3 दैन वो की होएगी बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इन जनरल F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस अप टू सो ऑन Fn जिन्ने भी फोर्सेस लग रही हैं अगर वो टोटल अपने को नैट फोर्स की होंगी इक्वल्स टू 0 क्यों जो बॉडी की आ इक्विलिब्रियम दे विच होंदी दिस इज इक्विलिब्रियम ਇਹਦੀ पूरी डिटेल ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ बुक तो रिवाइज करना है इक्विलिब्रियम ऑफ अ पार्टिकल सो अपने को वैक्टर कंडीशन के इक्विलिब्रियम के लिए इक्विलिब्रियम स्टेट के लिए वैक्टर कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम उसके लिए की होंदा है फोर्सेस F1 वैक्टर F2 वैक्टर एंड F3 वैक्टर दे आर एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल दैन दे आर एट इक्विलिब्रियम इफ F1 वैक्टर प्लस F2 वैक्टर प्लस F3 वैक्टर इक्वल्स टू 0 जिन्नियां भी कोई बॉडी के उत्ते की फोर्सेस एक्ट कर रही हैं ने ठीक है वो इक्विलिब्रियम च कदों होणगे जो उन्हों का सम अपने को की होएगा इक्वल्स टू 0 होएगा सो दिस इज द वैक्टर कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम Next is Lami's theorem. It states that the three forces acting at a point are in equilibrium if each force is proportional to the sine of angle between the other two forces. It means कहते कि अगर 3 फोर्सेस ने किसी पॉइंट से जड़ियाँ एक्ट कर रही ने जिवें एक पॉइंट हो गया इतने 3 फोर्सेस एक्ट कर रही हैं F1 F2 एंड F3
ਇਫ ਦੇ ਆਰ ਇਨ ਇਕਲਿਬਰੀਅਮ, ਇਕਲਿਬਰੀਅਮ ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤਿੰਨੋਂ ਫੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਕਲਿਬਰੀਅਮ 'ਚ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤਿੰਨੋਂ ਫੋਰਸਿਸ F1 ਪਲੱਸ F2 ਪਲੱਸ F3 ਤਿੰਨੋਂ ਵੈਕਟਰ, ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਵੈਕਟਰ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, 0 ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਫॉर ਇਕਲਿਬਰੀਅਮ। ਫਾਈਨ। ਸੋ ਅਗਰ ਉਹ ਤਿੰਨ ਫੋਰਸਿਸ ਇਕਲਿਬਰੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਦੈਨ ਈਚ ਫੋਰਸ ਕੀ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਦ ਸਾਈਨ ਆਫ ਐਂਗਲ ਬਿਟਵੀਨ ਅਦਰ ਟੂ ਫੋਰਸਿਸ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਫੋਰਸ ਕਿਹਦੇ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਦੋ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਸਾਈਨ ਦੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ F1 ਫੋਰਸ ਹੈ ਜਿਵੇਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਵੇਂ F1 ਫੋਰਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਈਨ ਆਫ ਐਂਗਲ ਬਿਟਵੀਨ ਅਦਰ ਟੂ ਫੋਰਸਿਸ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਦੋ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ F2 ਐਂਡ F3 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਅਲਫਾ ਉਹਦਾ ਸਾਈਨ, ਮਤਲਬ F1 ਬਾਏ ਸਾਈਨ ਅਲਫਾ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਨੈਕਸਟ ਫੋਰਸ ਇਜ਼ F2, F2 ਕਿਹਦੇ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਦੋ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ F1 ਤੇ F3 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਬੀਟਾ ਉਹਦੇ ਸਾਈਨ ਦੇ, ਮੀਨਸ F2 ਬਾਏ ਸਾਈਨ ਬੀਟਾ। Similarly last force F3, F3 is equals to sine of angle between other two forces, means F3 by sine of gamma. So this is the condition of Lami's theorem. F1 by sine alpha equals to F2 by sine beta equals to F3 by sine gamma.